ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਿਲਸ਼ੇਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਨਕ ਭਵਨ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਭਵਨ ਹੈ ਜੋ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਕੇਕਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਯੋਧਿਆ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਉਹ ਭਵਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਨਕ ਭਵਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ, ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਵਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ सहयोगी अश्विनी जी मौजूद ने। अश्विनी जी ना गलबात करेंगे। अश्विनी जी, कनक भवन के बारे में आप बता दें हमें, इतिहास क्या है, कैसे इसको मेंटेन करके रखा हुआ है? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये कनक भवन है। जब राम जी और सीता जी का विवाह के बाद उपरांत जब ये अयोध्या आए तो मुंह दिखाए के स्वरूप में इनको कनक माता कैकेयी ने गिफ्ट किया। तो ये पर्सनल जो भवन है वो राम जी और सीता जी का ये था और यहीं पे वो लोग रहते थे। ठीक इसके पीछे एक बगीचा है जिसे सीता बगीचा भी कहा जाता है और ये कहा जाता है कि पूजा करने के लिए माता सीता उसी बगीचे से फूल तोड़ती थी। और उसके बगल में एक कूप भी है। ये कहा जाता है कि उसी कूप से पानी जो है वो इस भवन में आता था जिसमें वो स्नान करती थी और तमाम जो काम होते वो होते थे। इसके इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो जब ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था तो जो इतिहास में देखने को मिलता है या फिर जो यहाँ के पुजारी है वो ये बताते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे भवन का जीर्णोद्धार किया था। लेकिन उस युग के बाद भी जब ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर से लूंगा मैं दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਨਕ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਕੇਕਈ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ खुद इस भवन ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸ਼विनी जी, इस तो फिर बाद में मेंटेन हुआ? जी, उसके बाद ये फिर क्षतिग्रस्त हो गया द्वापर युग के बाद। तो ये कहा जाता है कि जो विक्रमादित्य थे उन्होंने ही राजा विक्रमादित्य ने ही फिर से एक बार जीर्णोद्धार का काम शुरू किया और तब से वैसे ही बना। जो आप देखते कि कितनी इसका जो मुख्य द्वार है उसे बाकायदे इसमें नक्काशी की गई है और वो कलाकृतियां बनाई गई। हालांकि अभी जो वक्त है इस वक्त मंदिर बंद है, लेकिन अगर हम अंदर की तस्वीर दिखाएं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। बाकायदे इसमें नक्काशी की गई है और भगवान श्री राम की जो मूर्ति है माता सीता के साथ इसके अंदर है, गर्भगृह बनाया गया है। और जो भी भक्त आते हैं वो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और सबसे खास बात मैं अरुण जी आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग राम के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन हम लोग आए हैं और जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कनक भवन है इसके ठीक बगल में दर्शक महल है और उसके ठीक बगल में जो है वो हनुमानगढ़ी है। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग जो महल है वो बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये अस्तित्व में है। तभी आप देख सकते हैं कि श्रद्धा इस तरह का है कि जो लोग आए हैं वो दर्शन नहीं कर पाए तो यहीं से शीश नवा रहे हैं और नतमस्तक हो रहे ने। दर्शकों ਦੱਸ ਦਈਏ
ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ दरवाजा नहीं खोला गया। तो क्यों समय थे कि समय के मुताबिक खुलता है या क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये समय के मुताबिक ये फिर करीब 5 बजे के बाद ये मंदिर जो है खुलेगा। 2 बजे के बाद ये बंद हो जाता है मंदिर, तो किसी का पाठ खुले जाएगा, बाकायदे फिर से पूजा पाठ किया जाएगा। और ये रोज का जो ये प्रक्रिया है, ये इस प्रक्रिया के तहत ये काम चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की विरासत को संभालना संवारना बड़ा ही कठिन था, क्योंकि कई बार सवाल खड़े की अस्तित्व में जो है आता है और लोग सवाल भी करते हैं। लेकिन हमने देखा कि हर तरफ, यानी कि यहाँ दशरथ महल है, कैकेयी भवन है, राजभवन है, हनुमानगढ़ी है, तो ये सारे प्रमाण मिलते हैं कि भगवान श्री राम पे जो अस्तित्व पे सवाल खड़े कर रहे थे, अगर वो बखूबी पूरे क्षेत्र को घूम ले तो चीजों को समझ सकते हैं। और ये बकायदे बता रहा है कि इसके ठीक पीछे, इस भवन के ठीक पीछे अगर हम जाएं, और उन तस्वीरों को भी अभी हम दिखाएंगे कि वहां पर भी एक बगीचा है, जिन बगीचों में तमाम फूल लगाए जाते थे। और ये कहा है कि माता सीता जब पूजा करने के लिए उन्हीं बगीचों में जाती थी, वो पुष्प वहां से तोड़ती थी और वही उसी से पूजा पाठ करती थी। तो उन तमाम चीजों को संवारने का काम पहले राजा विक्रमादित्य ने किया। और अब यहाँ पर जो संत परंपरा है उसके तहत यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय के तहत यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है। तो बिल्कुल, तो ये भवन है जिथे अज भी पूजा पाठ चल रहा है। पूजा पाठ चलने नाल दस दिए कि कनक भवन है, माता सीता ते प्रभु श्री राम दा भवन, जिथे उन्होंने अपना समा बिताया। बनवास जाण तो पहला इत्थे रहिंदे रहे ने, बनवास जाण तो बाद भी उन्हों दा कह सकते हो कि जो परिवार इत्थे रहिंदे रहे ने, माता सीता नूं गिफ्ट च मिलिया ये भवन है जो मूँह दिखाई दे वेले माता कैकेयी ने उन्होंने दिता सी। पर फिलहाल ये तस्वीरां कनक भवन दियां तुहानूं फिर एक बार दस दईए कि नकाशी हजे भी उदां ही जारी है। बेशक पहला सतयुग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਵਾਇਆ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਭਵਨ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।